Hello everyone, I'm Anubhav Sapra from Delhi Food Walks. Welcome you to the very first episode of DFW Food Stories, a chat show where we host people from diverse backgrounds of life, be it fashion, food, lifestyle, music, art, travel, and culture. Today on board we have with us Navneet, who is a new age travel and fashion blogger, educator, and influencer. We welcome you, Navneet, on our very first episode. Thank you so much, Anubhav, for having me on this show. And I'm glad that DFW has started with such a nice series. And also to all my viewers, the times are tough. I urge you to stay strong, and this too shall pass. So don't worry. Thank you. So, Navneet, can you tell us something about yourself and your travels and what made you travel? Was it out of passion, curiosity? So, a little bit about me. As Anubhav was already told, that I'm a travel blogger, YouTuber, and an educator. So, I was born and brought up in Jammu and Kashmir, the crown of India, and I did my schooling from JK Public School, Kunjwani. And after that, I tried a couple of things before finding my passion. I cleared law entrance, then did something in forensic science, and even I'm a trained cabin crew. And then I did my post graduation in English literature, and I was a topper in the Jammu University, for which I was awarded with 2 gold medals by the Vice President of India. So this only encouraged my penchant for writing and go even more creative. So I was destined to get married slightly early. So I got married to an army officer, and this gave me even more chances and opportunity to travel. So घूमने को बहुत मिला because his job demanded it, and every 2 years we have been moving cities and changing locations, and sometimes even in few months. So we are living out of the suitcase and always on the go. And right after getting married, he got his deputation to United Nations Africa. And फिर हम क्या करते थे, अभी नई नई शादी हुई थी. So what he did, जब भी इनको छुट्टी मिलती थी, he used to take leave and travel to our choice of destination. And मैं यहाँ जम्मू से travel करती थी. So from Jammu to Delhi, and then Delhi to like further जहाँ भी हम plan करते थे जाने को. And he used to travel from his city. So our first international national travel destination was South Africa. And since then, there is no looking back. And in these few years, I have covered, I think, 6 international destinations, 14 Indian states, out of which I got to stay in almost 6 states as a localite for about a year or maybe a couple of months or 2 years. So ये जो चीज थी ना, it allowed me to express myself and know other people's culture. Or फिर that my thirst of traveling kept on increasing. And also I thought that I'm traveling so much, and how can I help others? How can I help people like me who are constantly into traveling and want to know more, but don't have that adequate information? See, everything is available on internet, we all know, but that first-hand information, that curated with that connection, that is not that much. So मैंने अपना blog start किया, और मैं जिधर भी जाती थी उसकी information and about hidden gems, और कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ क्या खाना चाहिए, authentic चीजें, उसके बारे में लिखती गई. And by God's grace, my blog is doing well. And then I ventured into social media, and I love sharing about my adventures, and not only adventures but misadventures as well. Because देखो adventures पे जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि 100% चीजें सही जाए. कभी flight miss हो जाती है, and कभी कुछ ऐसा हो जाता है. So these are very relatable things जो हर किसी के साथ हो जाती हैं. So I often make sure कि मैं ये सारी चीजें include करूं, so that people could gain something out of it. So that's how my traveling thing started. अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता था, आपके इंस्टा हैंडल ग्लैम्स एडवेंचर्स, उसके पीछे क्या है कि आपने एडवेंचर प्लस ग्लैम
ऐड किया? Okay, so yeah, this is a very interesting thing. I have always been interested in fashion, but I'm a travel lover as well. So ये मेरा जो travel और fashion का जो passion है, इसका mixture है glam as in like whenever you're traveling, like I travel like all the time, but I always travel in style. It's not that I put effort into it; it comes naturally. So I thought maybe it's something which has been like I don't know ingrained or innate or I don't know what it is. So maybe glam adventurous. So a bit of fashion, like how to travel in chic and cool outfits and make like do adventures and explore at the same time. So it's a mix of fashion and travel. So glam adventurous. और आप इतनी जगहों पे गए, you said like you have traveled to 6 international countries and Yeah. you have been to 14 states of India. Yeah. I'm sure when we travel, we also experience the food of the local place. So how food has shaped travel for you? Oh, food has always been an integral part of me, my culture, my family. So जब भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ सबसे पहले मैं एक चीज ये देखती हूँ कि वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं खाने की लाइक इंटरेस्टिंग स्टफ एंड ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी जगह मैंने ट्रैवल किया है और वहाँ की मैंने स्ट्रीट फूड और ऑथेंटिक लोकल फूड ना ट्राई किया हो इनफैक्ट ट्रैवल का मेन मेरा जो एम है दैट इज टू लाइक go explore and eat their local cuisine, know their culture, traditions, because that's what is the essence of the place. Food is a very important part. So यही सारी चीजें मैं हमेशा प्लान करती हूँ अपनी ट्रैवल में और यही सारी चीजें which has actually helped me to even look forward to my travels even more. तो जो आप ट्रैवल करते हैं तो कैसे प्लान करते हैं कि आप इन जगहों पे मतलब कुछ रिसर्च करते हैं कि यहाँ यहाँ जाएंगे ये एक्सपीरियंस करना है? जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ कि मैं इन फूड प्लेसेस पे जाऊंगा, यहाँ उनके बारे में थोड़ा सा पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो आपका कैसे वो प्लानिंग कैसे रहती है? या राइट अनुभव जैसे आपने कहा कि आप रिसर्च करते हो तो मैं भी ऐसे ही पहले जब मैंने अपना ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था सो आई एम लाइक इनटू रीडिंग अ लॉट स्पेशली लाइक ब्लॉग्स सो और सोशल मीडिया तो बहुत बाद में आया था लाइक आई वाजंट इवन अवेयर व्हेन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग सो मैं ब्लॉग्स पढ़ती थी लोगों के कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या देखना चाहिए कहाँ रहना चाहिए सो देन आई रियलाइज्ड आई एम सो हेवीली इनटू रीडिंग द ब्लॉग्स तो इससे कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ कहाँ कैसे और लोगों की कितनी हेल्प होती है एंड बहुत सारे ऐसे चैनल्स और ब्लॉग्स जो आपको पता है मे बी द अदर पर्सन डजंट नो सो ऐसे होता है कि अगर आपको एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको किसी जगह मिल जाए तो वो सबके लिए अच्छा हो जाएगा सो देन आई स्टार्टेड राइटिंग और ये सब हुआ और सेम थिंग आई थॉट कि अच्छा ठीक है तो ये रिसर्च बहुत अच्छी चीज है ये करेंगे तो आपको पता चलेगा सो वही थोड़ा बहुत रिसर्च करके कि क्या करना चाहिए कहाँ जाना चाहिए कहाँ खाना चाहिए तो ये तो इट्स अ मस्ट व्हेन यू ट्रैवल अदरवाइज इफ यू have not planned or researched then you would be just lost and doing everything and doing nothing तो आप half heartedly फिर वापस आओगे अरे यार ये करना था ये मिस हो गया so it's always better कि थोड़ा सा प्लानिंग थोड़ी सी अच्छे से आप अपना ऑर्गेनाइज करके अपना ट्रिप और फिर वो हमेशा मतलब बहुत ही अच्छा जाएगा so I always make sure and ensure that my that my diary or everything is ready कि ये करना है ऐसे ऐसे जाएंगे हम and this is how I plan my itinerary and my trip तो आपने रेफरेंस दिया ब्लॉग्स का। आज के दिन में पता नहीं मुझे, जब मैं भी एक तरह से प्री इंटरनेट एरा तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ सोशल मीडिया का जब इन्फ्लुएंस शुरू हुआ और पहले एक मतलब न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते थे, चाहे वो ट्रैवल आर्टिकल्स थे, फूड आर्टिकल्स होते थे या मैगजीन्स में, तो एक मतलब अंदर से एक होता था कि अब इस राइटर ने क्या लिखा है अब देखें। exactly, कॉलम्स आते थे। जब से सोशल मीडिया है हमने देखा है कि हर एक चीज इंस्टेंट मिल जाती है कंजम्पशन के लिए, वो काफी चेंज हुआ है। तो एनीथिंग यू लाइक टू ऐड कि सोशल मीडिया के आने से लाइक एज यू आर इन्फ्लुएंसर, और उसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और क्वेश्चन है कि विच इज योर फेवरेट मीडियम, लाइक से यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एज अ ट्रैवल
and fashion blogger and influencer. आपका favorite कौन सा है social media platform? All right, so I'm not biased, but I have to say Instagram because Instagram is the thing, and as much as we debate about it that social media is not good or whatever, but if you see, everything has its pros and cons, and for me, it has given me a lot of work. Of course, it has given me, but then a lot of positivity. Like I always keep looking for travel destinations. All right, if I see a particular picture, I'm like, okay, which country this is in? This is like such a cool spot. बहुत ही interesting लग रही है. थोड़ा उसके बाद में उसके बारे में research करके, then sometimes it has happened. Like I'll tell you a very interesting incident. Dalawala एक beach है श्रीलंका में. So it's वहाँ पे a swing है, like on a palm tree there's a swing, and next is the ocean. So you swing like in the ocean, and other say like you're swinging back. So I saw that picture on Instagram. It was very intriguing, very interesting, and I was like, wow, ये करना है, ये कहाँ है. So देखा वो श्रीलंका में था, and then उसके बारे में थोड़ा और research करके कि और क्या कर सकते हैं वहाँ पे. So I planned my this trip to Sri Lanka. So Instagram that way, it's a boon. आपको इतनी अच्छी information. See, again, at the end of the day, it's up to you what you want to see. Be it books, be it TV, be it social media. So if you are into negative stuff or the one which is harming your mental health, then it's of no use. So you have to make up your mind. What is your focus? What do you want to see? So I am all the time, it's like travel and maybe something about, those inspirational, like positive things, and fashion, of course. So मेरा तो वही काम है, वही देखती रहती हूँ, खुश होती रहती हूँ. Even in lockdown, I'm like, making my this calendar and my mood board. Okay, next is this. Once the COVID will get over, I would go there. So I think ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, and the way you channelize yourself, the way you channel your brain and your mind, and आपको वही चीजें दिखेंगी और you will become like that. So this is what I love to do, and Instagram is my thing. True. And of course recently I've started. Sorry. मैं अपने टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट कर गया. मुझे जानने का इंटरेस्ट था, तो मैंने सवाल पूछ लिया आपसे. Yeah, and like you mentioned about YouTube, so recently I started with YouTube. It's been just a month, and believe you me, I have been loving it. Like I'm looking forward to my free days. That yes, now I'll make this kind of video, and now because of lockdown we cannot go out. So I've been devoting all my energies into cooking, और cooking करने में इतना मजा आ रहा है, and I'm really enjoying YouTube. I'll come to that. So while exploring your written blog post, I discovered a line that says one should always eat local while traveling, because that's how you get to know them better. So I wanted to ask, how much importance does local eating have on your traveling experiences? And can you share some of the best local food experiences of yours? And it could be anywhere. Yeah. It's not specific to your home state. It could be anywhere. Okay. So like you've already mentioned, so I firmly believe in that, because देखो, अगर आपने किसी जगह आप जाते हो या किसी के इवन घर में भी जाते हो, तो आपको ना वहाँ पे उनका एसेंस पता चलता है, उनके रूट्स पता चलते हैं. सो सेम इज द थिंग विद ट्रैवलिंग. जब आप किसी कंट्री जाते हो, और इवन इन इंडिया व्हेन यू गो टू एनी स्टेट फॉर दैट मैटर, तो वहाँ का जो लोगों का खाने का तरीका है, जो वो खाना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, मिल बांट के कैसे वो रहते हैं, so that shows a lot about their culture, about their traditions, about their roots. So वो मुझे ना बहुत ही खुशी देता है. I really feel so engrossed and intrigued उनके culture के बारे में, and sometimes I don't know, time travel, I go back. अच्छा वो कैसे रहते होंगे, उनकी जो पुरानी generations है वो कैसे ये चीजें बनाती होंगी. So while traveling, एक तो I would like to make a special mention of Kashmir. Jammu, of course, it's my hometown. I really love the food. But when we were posted in Kashmir, so I stayed there for about a year and a half or so. So वहाँ का जो खाना है, that is beyond words. उस खाने में ना एक seriously that कश्मीर को जन्नत बोलते हैं ना, तो वो खाना भी जन्नत है. So I don't know if you've tried Wazwan.
सो Yes. वासवान का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, यू कैन द फर्स्ट बाइट विच यू टेक, आपको उसी से पता चल जाएगा कि उस खाने में कितनी मेहनत की गई है। और ऑफ कोर्स दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पता नहीं कितने, मतलब 14-15 घंटे उसको पकाना पड़ता है, ऑन स्लो कुकिंग। सो कश्मीर का जो खाना था वो ऑथेंटिक खाना, हम जाते थे, ऑल्दो सिक्योरिटी रीजंस बहुत होते थे, एज यू नो, बिकॉज देयर इज ऑलवेज टर्मोइल इन द वैली, but whenever we used to get a window, we used to go out and explore these local food stations. और वहाँ का खाना, वहाँ का जो ये टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। एंड आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि जब भी आपको मौका मिले आप कश्मीर का फूड जरूर ट्राई करें, वाजवान। सो गोश्ताबा एंड यखनी and rista, these are my favorite. And if we move ahead from Jammu, so I would like to go to Mauritius, yeah, to those clear waters and palm tree island. So वहाँ का खाना बहुत ही अमेजिंग है। You must be aware that Mauritius is a melting pot of cultures and ethnicities, because बहुत सारे different culture के लोग वहाँ पे बसे हैं, be it Indians, Africans और French, and इन सबका जो influence है खाने का, वो सब वहाँ पे mix होके Mauritian food में आपको मिलता है। So we were just walking across the streets और बीच पे ऐसे ही घूम रहे थे। So वहाँ पे बीच शैक पे ना, वहाँ पे वो लोकल वेंडर्स और वो हॉकर्स वो खड़े हो जाते हैं खाना वाना लेके, दो स्ट्रीट फूड स्टफ। सो हम घूम फिर के हम वहाँ पे आए, एंड वहाँ पे एक हॉकर था जो खाना दे रहा था, वो स्नैक्स बना रहा था, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। सो ही वाज सेलिंग ढोल पूरी। सो मैंने उनको बोला कि अच्छा ये ढोल पूरी क्या है। सो इट वाज वेरी सिमिलर टू आवर इंडियन फूड। सो ढोल पूरी इज बेसिकली अ फ्लैट ब्रेड, लाइक अ सॉर्ट ऑफ चपाती और पराठा, एंड इट इज फिल्ड विद दैट येलो स्प्लिट बीन, जो चने की दाल होती है ना। सो वो उसके अंदर मिक्स करके देन दे जस्ट मेक इट अ रोल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और अचार के साथ और चटनी के साथ वो आपको देते हैं। सो अपॉन टेस्टिंग आई रियली फेल्ट that it's very close to India, my own country. तो वो खा के मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट तो था ही, वो मॉरिशस का टच तो था ही, बट विद अ हिंट ऑफ इंडिया। सो दैट अगेन आई रियली एंजॉयड। और वहां पे वो पाइनएप्पल्स देते हैं, दोस विक्टोरियन पाइनएप्पल्स विद वो रेड पेपर और थोड़ी सी चटनी और टैमरिंड का जो अपना इमली की चटनी होती है थोड़ा उसके साथ, तो वो बहुत खट्टा मीठा इतना टेस्टी होता है ना। मेरे तो अभी भी लाइक आप बोल रहे हैं, मुझे भी स्वाद आ रहा है। हाँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बहुत ही अमेजिंग खाना है मॉरिशस का। तो जब भी आपको चांस मिले मॉरिशस जाने का, तो वहां का स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करिए, यू वुड थैंक मी लेटर। और मॉरिशस के बाद एक और जगह है जो मुझे खाना वहां पे बहुत अच्छा लगा। खाने तो अच्छा लगा, बट खाने से ज्यादा मुझे खाने का जो माहौल था ना, the overall vibe that I really liked. So it is of Malaysia, Kuala Lumpur. So Kuala Lumpur में जब हम घूम रहे थे, उसके बाद हमने कहा घूम फिर लिया, फिर ट्रोना टावर्स देख लिए, सारी चीजें सब कुछ हो गया। अभी हमने कहा कि चलो शाम को आफ्टर रिलैक्सिंग इन अ होटल, हमने कहा चलो अभी इनका ना स्ट्रीट फूड, जो नाइट फूड होती है ना, नाइट फूड मार्केट, वो बहुत फेमस है वहां पे। सो वी वेंट देयर, एंड वहां पे तो कोई और ही माहौल था। ऑफ कोर्स अभी तो कोरोना आ गया है, पहले तो कोई मास्क नहीं था, कुछ नहीं था, एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक फ्रीली एंजॉयिंग एंड लिविंग देयर लाइव्स। सो हम वहां गए, जैसे जैसे वी वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मार्केट, इट वाज ब्राइट, वाइब्रेंट, लिट, एंड पीपल वर सेलिब्रेटिंग। वहां पे खुशबू आ रही थी ग्रिल्ड चिकन की, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स एंड दैट फूड स्टीम, और बहुत ही लाइक दोस फेरी लाइट्स एंड एवरीथिंग, बहुत ही वेल लिट एंड अमेजिंग वो फूड मार्केट थी। सो वहां पे वो आफ्टर थोड़ी देर बाद आपको वो फिश का वो अरोमा और उस तरह से, एंड स्लाइटली देयर फूड कल्चर विच यू माइट बी अवेयर ऑफ, वो थोड़ा प्रोमिनेंट होने लगता है, विच we Indians might not be very comfortable with. So मैंने तो अपना वहां पे सैटे चिकन सैटेज जो कि बैम्बू स्टिक पे वो ग्रिल करते हैं ऑन हॉट फायर, दैट चारकोल एंड एवरीथिंग, दैट आई ऑर्डर। तो वो बहुत ही अमेजिंग था। एंड उसके बाद मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज वहां पे खाई थी, विच इज फ्राइड आइसक्रीम रोल्स।
तो दैट वाज इन इटसेल्फ अ ट्रीट टू वॉच कि वो वेंडर कैसे बना रहा है। वो एक तवा लिया हुआ है उसने बड़ी सी डिश, एंड ही इज प्लेसिंग दैट आइसक्रीम ना बहुत ही पतला सा वो लेयर बना के, देन ही स्क्रैपिंग, rolling it so quick and putting it into those smaller little glasses and cups and selling it. Everyone is making merry, happy. तो वो बहुत ही amazing वो scene था, which has been embedded in my this हम्म, mind. And अभी लॉकडाउन में जब भी मेरा ट्रैवल करने का मन करता है तो मैं तो अपनी वही वीडियोस, फोटोज या अपनी यादों में खो जाती हूँ. So these places really are very close to my heart when it comes to street food. बिल्कुल मतलब 2018 में मैं कश्मीर गया था। इनफैक्ट मैं Oh, दिल्ली से ड्राइव करते हुए जम्मू रुका था, फिर कश्मीर रुका, उसके बाद लेह लद्दाख गया था। तो oh wow. कश्मीर बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी। और जो आपने बताया वाजवा, मैं एक वहाँ पे शादी में गया और उनके साथ पूरा जो आपने बताया वाजवा कोर्स बाई कोर्स सारी चीजें बनते हुए भी देखी और साथ में उसका टेस्ट भी किया। वो एक लाइफ Oh, टाइम एक्सपीरियंस है। lovely. बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी को एक्सपीरियंस करना, इंडियन फूड में इतनी डाइवर्सिटी है और कश्मीरी बहुत. क्यूजीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कभी मौका मिले तो लोगों को जरूर जाना चाहिए। मैं मॉरिशस Exactly. और मलेशिया तो नहीं गया, बट श्योर आपके जैसे आपने जिस तरह से बताया है वहाँ का फूड कल्चर, होपफुली जरूर लॉकडाउन के बाद और जब ये दोबारा से चीजें ट्रैवल शुरू होंगी पैंडेमिक के बाद, फिर हम लोग जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। Yeah. और जिस True. तरह से आपने बोला ना कि एक एक वो मजा बिना मास्क के घूमना और फ्रीली एक्सप्लोर करना स्ट्रीट फूड स्ट्रीट मार्केट्स, वो पता नहीं दोबारा से वो चीज आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी पोस्ट कोविड। पिछले Exactly. 1.5 सालों में तो हम लोग जहाँ भी गए वहां अभी भी हमें मास्क पहन के ही घूमना भी है और बाहर निकलना भी है। तो देखते हैं Exactly. कैसे अनफोल्ड होता है आगे। तो We can just hope for better days to come. जी 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 जी। On digging a little further in your Instagram, we got to know, आपने बताया भी अभी कि आप जम्मू से हैं। तो जम्मू में बहुत सारी अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, पंजाबीज हैं, डोगरा हैं, उन सबका फूड कल्चर मिलता जुलता भी है, थोड़ा अलग भी है। तो उसके बारे में we wanted to know, and in fact we have seen couple of days back you uploaded a video of राजमा, and trust me मैं पंजाबी हूँ, मतलब ये नहीं है कि सभी पंजाबियों को पसंद आता है। मुझे मेरी फेवरेट डिश राजमा चावल है। वो एक ऐसी डिश है Oh, कि मैं बहुत सारे अपने वीडियोस में बोल भी चुका हूँ। ऐसी डिश है कि मैं सालों भर खा सकता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी खा सकता हूँ, तीनों टाइम खा सकता हूँ। और मैं कहीं भी एक्सप्लोर करता हूँ, खासकर हिल स्टेट्स में जहाँ भी जाता हूँ, वहां से वहाँ की लोकल राजमा जरूर सोर्स करके लेके आता हूँ, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या जम्मू हो। तो मुझे याद है जम्मू जब भी हम लोग वैष्णो देवी जाते थे, वहां से छोटे वाले राजमा लेके मैं वापस आता true, था। true. और तो मुझे ये जानना था कि जम्मू में जो कम्युनिटीज हैं उनके फूड कल्चर के बारे में, और साथ साथ जो आपने अभी नई रेसिपी अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, राजमा और अंबल की सब्जी, साथ में आपने एक पुग्गा पुग्गा बोलते हैं इफ आई एम करेक्ट। Yeah, yeah, yeah. हाँ हाँ, उसके बारे में भी और सेमिया, तो जम्मू Sure, कम्युनिटी एंड sure. फूड कल्चर। Yeah, first give me a high five because I'm a Rajma lover too, वाह hardcore वाह। one. In fact, I have mentioned it in my bio on my blog. Like कुछ जो bio होता है, I have mentioned about Rajma Chawal that I can have it anytime. I love it so much. So yeah, Jammu is again a diverse state. वहाँ पे आपको different culture के लोग मिल जाएंगे, different religion के लोग मिल जाएंगे. There are Punjabis, Sikhs. There are Dogras, Rajput और Muslims and Kashmiri पंडित. So सारे लोग मिलजुल के रहते हैं और सबका खाना जैसे वो इन्फ्लुएंस होता है ना, सारा खाना एक दूसरे का वो इन्फ्लुएंस होके आपका जो डोगरी कुजीन है उसके अंदर वो मिक्स होके आता है. So while growing up, मैंने तो like I'm from a Sikh family, Punjabi family settled in Jammu. So वहाँ पे हमारे घर में वही पंजाबी खाना और डोगरी खाने का वो जो मिक्स, जैसे जो जम्मू फूड है वही बनता था, वही खा के हम बड़े हुए हैं. एंड दैट इज माय लाइक गो टू फूड, माय कंफर्ट फूड. एंड बहुत ही अमेजिंग है वहाँ का खाना. लाइक yeah, I really love it. And मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं का भी खाना खाऊं, but after some time I need to have that taste, that distinct taste, और जो वो flavor है उसकी बात ही और है.
सो वही है जम्मू के खाने की वैरायटी की, अलग अलग तरह का, अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग हैं, सब बसे हुए हैं वहां पे, और सबका खाना एक दूसरे के अंदर उसका इन्फ्लुएंस है. एंड नेक्स्ट व्हाट डिड यू आस्क? आई एम सो सॉरी. अम्बल. हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि अम्बल. या अम्बल के बारे में. या या. सो लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल में कुकिंग स्टार्ट कर दिया है. एंड इनफैक्ट यूट्यूब तो अभी स्टार्ट किया, उससे पहले ना मैंने इंस्टाग्राम पे आईजीटीवीज भी जो वीडियोस थी वो करी थी, लाइक प्रीवियस लॉकडाउन में. अगेन फॉर द लव ऑफ ट्रैवल, दैट यू नो लाइक जो टेस्ट होता है, लाइक सपोज जैसे मैंने मेंशन किया कि मॉरिशस का ये जो टेस्ट था, अगर मेरे को वो घर में बनाना है, तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं वहां से थोड़ा रेसिपी थोड़ा पूछ के, थोड़ा कि कैसे करते हैं ये वो. दे आर नॉट वेरी वोकल अबाउट इट टू शेयर देयर रेसिपीज, बट थोड़ा बहुत पता करके, फिर थोड़ा बहुत खुद अपना इंटरनेट से देख के, सो आई ट्राई टू रिक्रिएट दैट cuisine, दैट काइंड ऑफ फूड. तो मैंने ये पिछले साल भी किया था, एंड आई स्टार्टेड विद दिस सीरीज ऑन सिमिलर लाइंस व्हिच यू आर नाउ डूइंग, एंड आई एम लविंग इट. सो मैंने वहां पे यही किया था स्टार्ट. तो फिर मैंने अभी सोचा कि चलो अभी इस लॉकडाउन में हम अपने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, माय ओन स्टेट. सो ये जो राजमा और अंबल है, अंबल इज अ डोगरी cuisine. सो अंबल इज नॉट द नेम ऑफ अ वेजिटेबल, अंबल इज अ लाइक जब खाना बन के आ जाता है, सो दैट डिश इज कॉल्ड अंबल. So it's made with yellow pumpkin, and it's very very popular in Jammu. तो जम्मू में जब खुशी का मौका होता है, या even when someone you know at a sad moment when someone isn't anymore, so खुशी हो या गम हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मौका हो, ये राजमा और अंबल irrespective of the circumstance बनेगा ही बनेगा. और जम्मू के राजमा, लाइक अनुभव आपने मेंशन किया, वो छोटा वाला जो राजमा होता है उसको भदरवाही राजमा बोलते हैं. भदरवा इज अ रीजन इन जम्मू, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल वन. सो वहां का ये छोटा दाना, द रेड कलर किडनी बीन ना, ये राजमा वहां का मिलता है. और इसका टेस्ट, लाइक इफ यू कुक अदर राजमा ऑल्सो, सबका अलग अलग टेस्ट है, सबका एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है. सो इसका इट इज गॉट अ डिफरेंट फ्लेवर. तो मैंने अभी ट्राई किया था, तो बहुत ही अमेजिंग था. एंड I'm a Rajma lover. It's no more a secret now. So वो मैंने बनाया था और बहुत अमेजिंग बना था. और उसके बाद जो अम्बल है, ये येलो पम्पकिन जो बड़ा वाला कद्दू होता है, यू मेक इट विद दैट एंड येलो पम्पकिन वन. सो उससे आप बनाते हो. एंड इसका जो इंग्रेडिएंट है दैट इज, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, बस प्याज है, अपना गार्लिक है, एंड इमली एंड जैगरी. सो यू कैन पुट शुगर एज वेल, बट जैगरी हो तो ज्यादा अच्छा है. एंड ये है अम्बल. और हर जम्मुआइट को ये बहुत ही पसंद आएगी. और वो कहीं भी बसे हो ना, उनको एक बार ही आप बोल दो अम्बल, एंड दे वुड लाइक बी ऑल नॉस्टैल्जिक, एंड दे वुड लाइक क्रेव फॉर कि मुझे अम्बल अभी ही मिल जाए. नहीं, हम लोग आपके जो आपने ये वीडियो बनाई है रेसिपी की, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर देंगे, ताकि और भी लोग देख ग्रेट. सकें और या वो बना सकते हैं. और नेक्स्ट एक्चुअली. एक नेक्स्ट डिश थी पुग्गा. Oh yes, pugga. So pugga is it's made with til, white sesame. हम्म. तो ये सेसमी सीड से बनता है एंड चीनी से बनता है. एंड जम्मू कश्मीर जैसे थोड़ा ठंडा इलाका है वो, जम्मू फॉर दैट मैटर, उसकी गर्मी सर्दी थोड़ा दिल्ली से बहुत सिमिलैरिटी है. एक्सट्रीम विंटर्स हैं, एक्सट्रीम समर्स हैं, बट अगेन पुग्गा इज टू बी, इट्स स्वीट. सो वो लड्डू जैसे हैं, तिल के और चीनी के, और उसमें खोया वगैरह डलता है. सो इट्स ईटन इन विंटर्स, ताकि आपको थोड़ी सी हीट मिले, बिकॉज ठंड बहुत होती है ना. सो इट्स दैट. अगेन इट्स it's amazingly delicious. बहुत ही उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है. और ये जम्मू की ही रेसिपी है, आपको बाहर कहीं कहीं नहीं मिलेगी. ये जो पुग्गा जो स्वीट है ना, इट्स अमेजिंग. एंड माय मॉम एंड डैड बैक होम, दे कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट देम, दैट दे आर ऑलवेज हाई ऑन फूड. सो अब क्या बनेगा, अब क्या बनाए. सो दे कीप मेकिंग डिफरेंट डिशेज एंड रेसिपीज. और हमारा जो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें खाने की बातें चल रही होती हैं. अब क्या बनाए, अब क्या खाएं, मैंने ये बनाया, उसने ये बनाया. सो इट्स ऑल fun and food and laughter. So again, my dose of sanity and positivity in these tough times. So सेमिया again very popular snack of Jammu. और अलग अलग रीजन में अलग अलग चीजें उनको बोलते होंगे. सेमिया is made with बेसन, और उसको डीप फ्राई करते हो अंदर नमक वगैरह जो आप सब डाल के. So it's again, tea time snack, and you can just, very crunchy. You can have it and savor it and enjoy. सेवरी होता है ये. Salty. Semiya, yeah, semiya is like salty.
अच्छा which is of जम अब मीठे मीठे वाला भी होता है हाँ इसमें, जी वो हाँ गुड़ जी हाँ जी डाल मीठा के थोड़ा शक्कर डाल के ना, जी या जी। बट दिस वन इज सॉल्टी। और कितनी अच्छी बात है, आज ईद है और ओ मैं भी प्लान कर रहा हूँ एग्जैक्टली। कि अभी सेवई बनाऊंगा क्योंकि हाँ हाँ पिछले हाँ 2 सालों से ईद घर पे ही बन रही है। बाहर जाना नहीं हो पाता। पहले तो इतनी एक्साइटमेंट एग्जैक्टली। होती थी कि रमजान का समय है, बाहर जाएंगे और दोस्तों से मिलेंगे, और पिछले दो हाँ सालों से घर पे ही है। तो आज मैं अपने वही ईद की यादों में आज सेवई बनाऊंगा हाँ, बहुत मीठी से दूसरी मीठी वाली सेवई। सेवियां भी बनाना, मीठी वालियां, हाँ, और whenever you get a chance you must give this a try, and it's got a different flavor, like it's really nice. तो ये भी आपके YouTube चैनल पे है, सेवई की भी रेसिपी? I'm planning to incorporate all these recipes one at a time. So बिल्कुल I have बिल्कुल। again made a YouTube recipe of Kashmiri dum aloo, हम्म। which I'm about to upload. तो मैंने वो वीडियो तैयार कर ली है। So authentic जो एकदम देसी स्टाइल का जो हम्म। कश्मीरी दम आलू होता है, so जो वो घरों में बनते हैं, no, not the ones which are prepared in restaurants with that cream and all. So हम्म। that I have tried to prepare. Hopefully I mean people like it. I'll upload it soon. बिल्कुल। मतलब एक तरह से जम्मू का खाना भी लोग बाहर में, जैसा मैं बताता हूँ, मैं फूड के लिए ट्रैवल करता हूँ, उतना ज्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, उतनी ज्यादा बात नहीं की जाती जम्मू के खाने की, एक्सेप्ट It's राजमा not, you're लगता है right. मुझे। Yeah. हाँ। तो और मैं जब जम्मू गया था 2018 में, ढूंढता रहा कि क्या क्या लोकल डिशेस हैं। किसी ने एक डिश के बारे में बताया था, कोई अनारदाने से शायद मीट की डिश बनती है, खट्टा खट्टा मीट, या। खट्टा मीट। और जिस दिन मैं वहां पे था तो वो शॉप बंद थी, और Oh. तो वो मैं नहीं टेस्ट कर पाया। तो मेरा अभी भी एक वो टू डू में है कि नेक्स्ट टाइम जब जम्मू जाऊंगा तो जरूर ट्राई करूंगा। तो इसी के साथ मेरा नेक्स्ट था कि आप जम्मू में आपकी योर फेवरेट प्लेसेस टू ईट इन जम्मू, और इट विल ग्रेट इफ यू कैन मे बी टेक अस ऑन अ शॉर्ट फूड टूर ऑफ जम्मू, मे बी योर फेवरेट प्लेसेस, व्हाट टू ईट, वेयर टू ईट। Oh yes, yes, why not? ये सवाल पूछ के ना, मतलब I have gone back to the memory lane, और बचपन के दिन याद आ गए। So जम्मू is a very diverse place, जब खाने की बात आती है, और बहुत ही अमेजिंग तरह का वहाँ खाना है और खाने की जगह है। एंड जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही चटकोरे हैं, उनको खाने का बहुत वो है, इंटरेस्ट है खाने में। So every evening you would see people flocking to these streets जहाँ पे वो hawkers होते हैं, और वो ये food vendors, खाने की वो stalls लगी होती हैं और रेडियां लगी होती हैं, और लोग वहाँ लगे होते हैं खाना खाने, and just to have fun. So जम्मू में तो in fact, like, I have always enjoyed eating, or if you like about specific जो जगह हैं वहाँ पे, while growing up I have always enjoyed KC Plaza का खाना. I don't know if it is still there, but it was a restaurant back then. Abhi I'm not sure that after so many years even if it is there or not, but वहाँ का खाना बहुत अच्छा था. Then there is पहलवान दी हट्टी in गांधीनगर. So अगर आप गांधीनगर जाएंगे, वहाँ पे गोल मार्केट है, which again in itself is the landmark, गोल मार्केट. So वहाँ पे ये बहुत ही prominent, very popular and very old ये एक शॉप है. It's a sweet shop, बट वहाँ के छोले भटूरे खाने में ना बहुत ही मजा आता है. So it's there's no that way place to sit. एक छोटा सा उन्होंने एरिया बनाया हुआ है बैठने का, but rest of the thing is standing. You take your plate and you just have it. So छोले भटूरे and फालूदा, कुल्फी and गुलाब जामुन. So वो पहलवान दी हट्टी का बहुत टेस्टी है. So right next to Pahalwan Di Hatti is Papa Di Hatti and Gyan Da Dhaba. So there you get like really yum mutton chops and fish tikka and chicken, snacks, those grilled tandoori. So that is a must have. So I, like, whenever I go to my hometown, I make sure that I go there and, relish those delicacies and relive those, taste. So ये बहुत अमेजिंग है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज वहाँ पे ITC फॉर्चून है जो हम जाते थे, और फैमिली टाइम अपना वहाँ स्पेंड करते थे, वो थोड़ी वो मेमोरीज हैं. तो वहाँ का खाना भी बहुत अमेजिंग है. देन यू हैव रामाडा, वो भी बहुत अमेजिंग है. देन वो जो स्ट्रीट फूड के जो छोटी छोटी आउटलेट्स हैं, वहाँ पे एक है इन शास्त्री नगर. इफ यू आर फॉन्ड ऑफ गोलगप्पास एंड चाट, सो विम्पी.
सो विम्पी फूड कॉर्नर में वहां पे गोलगप्पास मिलते हैं, और वहां की खासियत ये है कि वो सतरंगा आपको गोलगप्पा देते हैं, लाइक 7 कलर्स एंड विद देन विद कर्ड आल्सो, विद लाइक मीठा वाला, खट्टा वाला, ऐसा। तो बहुत ही यूनिक है। आप किसी भी जम्मुआइट से अगर आप पूछेंगे कि विम्पी का वो जो गोलगप्पे मिलते हैं, सो दे वुड बी लाइक ऑल डिलाइटेड एंड एक्साइटेड टू शो यू कि हाँ हाँ यहाँ है, वहाँ है। सो इट्स रियली यम। And then there is Kaladi Kulcha. Have you heard about Kaladi Kulcha? Yes, yes, Oh, I've tried it. yeah. So Kaladi Kulcha again is a specialty of Jammu. So Kaladi is what? It's a cheese sort of a thing, very similar to mozzarella, but very different from mozzarella. So वो चीज उसमें डालते हैं, and that is like bun को, like burger. So उस तरह से वो होता है. Again, it's specially and स्पेसिफिक टू जम्मू, बहुत अमेजिंग है वो आपको गोल मार्केट में अप्सरा रोड पे वो मिल जाएगा। एंड अप्सरा लेन में ना, जो अप्सरा रोड है, अगेन इट्स वेरी नियर टू गोल मार्केट, उसी का एक्सटेंशन है जो रोड आपका, वो लेफ्ट से आई थिंक इट विल गो टुवर्ड्स द राइट, या सो वहां पे नियर मस्जिद, नियर दैट मॉस्क, वहां पे आपको मिलेगा दैट डोसा हट। सो डोसा हट में अगेन जम्मू और डोसा का कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो डोसा बहुत ही अमेजिंग है, डोसा एंड वहां की जो जलेबी मिलती है। सो व्हेनेवर यू गेट अ चांस, प्लीज गो देयर एंड एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। तो जब आप जम्मू गए थे, डिड यू हैपन टू बी एट ऑल दीज प्लेसेस? Not really, not all the places which you just mentioned, but I remember trying halwa at one place. जो सुबह सुबह एक हलवा लगाते हैं राइट राइट, सूजी वो का, सुबह ही खत्म हो जाता है, सुबह ही एग्जैक्टली, खत्म दैट हो इज इन जाता द है। सिटी। हाँ जी, हाँ जी, ओल्ड हाँ, सिटी। और वो जो मुझे याद है, जो लास्ट में स्क्रैचिंग, जो स्क्रैपिंग्स होती है, स्क्रैपिंग हाँ सॉरी, हाँ, वो लोग बहुत शौक से खाते हैं उसकी, या वो। और साथ में एक चीज मैंने और ट्राई की थी, कुल बन को राजमा के साथ साथ देते हैं, बन या राजमा या राइट उसमें राइट, बन डिप कर राजमा। देते हैं उसके रस में ही। और वो हाँ ट्राई जी। किया था। थर्ड एक कोई ढाबा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनके यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पे वो पीतल के बर्तनों में वाज इट खाना। जमींदारा? हाँ शायद, आई थिंक सो, हाँ, मेरे को बिकॉज नाम अगेन याद इट्स वेरी पॉपुलर। हाँ हाँ है। हाँ। और कल्हाड़ी कुलचा, मतलब ज्यादा कुछ ट्राई नहीं कर पाया था, मैं सिर्फ एक दिन के लिए वहां पे था, और नेक्स्ट डे ओके हमें ओके आगे ओके। जर्नी शुरू करनी थी। तो बट बट वो अगेन यू किसी एक्सप्लोर्ड अ लॉट, एक दिन में आपने बहुत एक्सप्लोर कर लिया। जी, तो नेक्स्ट टाइम जो आपने बताई है जगह, खासकर जो मटन चॉप वाली और जो हाँ, ढाबा और हट्टी, वो सब जरूर ट्राई करेंगे, और हुआ तो आपके साथ प्लान करेंगे एक फूड टूर ओह जम्मू ऑफ का। कोर्स, आई वुड बी डिलाइटेड टू डू दैट। एंड इसके और अलावा ना, अगर जो दिल्ली जम्मू हाईवे है, वहां पे एक जगह है ठंडी खुई, इट्स नियर टू विजयपुर। तो वहां का जो मिठाई है, सो इट्स अ खोया बर्फी, एंड जो बनाते हैं उसको, ही इज अ ब्लाइंड मैन, सो ही कैन नॉट सी, बट जो वो बर्फी है, दैट इज क्लास अपार्ट। लाइक आई हैवंट येट टेस्टेड सच डिलिशियस बर्फी सो फार इन माय लाइफ। तो वहां ठंडी खुई की जो बर्फी है वो टेस्ट करना बनता है, और उसके साथ साथ वो बेसन की बर्फी भी देते हैं, जिसको मेसू बोलते हैं इन डोगरी। सो मेसू एंड वो ठंडी खुई की वो खोए वाली बर्फी इज लाइक अमेजिंगली गुड। सो जब भी आप जाएं, वहां पे वो जरूर ट्राई करें। सो ऑल दीज प्लेसेस जो मैंने मेंशन करी हैं, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। बिल्कुल, और ज्यादातर जो लोग बाहर से आते हैं जम्मू, उनका मेन पर्पस होता है वो रिलीजियस वैष्णो देवी जाने के लिए, तो फूड उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन अच्छा है कि आपने जो जगह बताई हैं, नेक्स्ट टाइम जो भी जम्मू जाएंगे उन जगहों पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मे बी फ्यूचर में आप एग्जैक्टली। भी अगर एक छोटा सा, इफ यू राइट अ ब्लॉग अबाउट द प्लेसेस टू ईट इन जम्मू, और मे बी थ्रू अ या वीडियो, it will be helpful या for all of us, so we can go and हाँ explore जी। it. तो कहीं ट्रू ऐसा ट्रू। ना करे कि हमारा ठंडी कोई मेरा मिस हो गया, मैं नहीं जा पाया, तो नेक्स्ट टाइम जरूर होके आएंगे। हाँ जी, जरूर जाइएगा। और लास्ट में मैं एक सवाल था, हम लोग ने ये पता चला कि आपके ब्लॉग्स के थ्रू that your father is a great cook and that you have your own kitchen garden back in Jammu, and this shows that you have been always connected with food. So can you tell us about that, your kitchen garden, और वहाँ पे क्या क्या चीजें आप ग्रो करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर, आई वुड बी हैप्पी टू शेयर। सो
My father has been like running colleges and schools. He's been like director of the school college and his empire. But uske baad, we children, we kids, we thought that enough of it, Papa. Abhi bahut ho gaya. Like you've been working like anything. Now you need to relax and like enjoy life. But he's somebody who cannot sit idle and उनको खाने बनाने का बहुत शौक है. कोई भी घर में आएगा ना, he would quickly like go to the kitchen and he's a very fun sort of a guy. तो फटाफट कुछ बना के ले आएंगे and amazing से snacks. So his specialty lies in snacks and non-vegetarian food, like you mentioned khatta meat. So he's like amazing with that. And achar ho jaye ya wo jam and marmalades, वो सारी चीजें तो वो तो उनकी specialty है. So now lockdown again, gave us a chance and a reason to explore and do something really constructive. So fortunately, by God's grace, we have a really big house back in Jammu. तो वहाँ बहुत काफी जगह है वहाँ पे. So उसको हमने kitchen garden में convert कर लिया. So it's really huge. तो वहाँ पे पापा अपना काम करते रहते हैं. He keeps on planting new things and digging और अच्छे से gardening वगैरह करके उनकी exercise भी हो जाती है और खाना भी मिल जाता है. And so much so that neighbors are very happy. Because the produce is so much कि वो खुद तो because they are just two mom and dad, so back home वो खुद तो इतना खा नहीं सकते and because of this lockdown thing वो किसी और को भी नहीं बेच सकते, neither we can visit them. तो वो चीज है कि ठीक है वो भी खुश हैं और नेबर्स भी खुश हैं कि इतनी सारी चीजें हैं. सो अभी आई थिंक रिसेंटली वो मैंगोज बहुत सारे, वी हैव अ मैंगो ट्री, जामुन का पेड़ है, पपाया है एंड बाकी सब्जियां, हरी सब्जियां तो है ही along with the herbs. So my mom dad always encouraged कि आप जितना हो सके, because in the city it is not possible, but we still have our balcony garden और kitchen garden. अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो थोड़े बहुत pots होते हैं जिसमें हम थोड़ा धनिया, पुदीना या छोटी छोटी चीजें ये उनको उगा सकते हैं. So they always laid stress कि जितना possible हो सके उतना अपना खाना खुद grow करिए, because when you put so much of labor and hard work into growing something, when that thing comes on your plate, you have even more respect for your food, right? एंड और अगर आपका खुद का किचन गार्डन है तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. एक तो दैट इट्स free of those fertilizers and pesticides. It's farm fresh, it's organic, it's good for your health. And especially in the times like these when there is a risk of going out, so if things are available right at your home, so there is no worry stepping outside and contacting with other people and the virus, of course. So अगर possible हो सके, because हमारे घर में अगर जगह ना भी हो तो हमारे पास गमले तो होते हैं, तो उनमें तो थोड़ा छोटी मोटी चीजें हम ग्रो कर ही सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि हाँ ये चीज करनी है और अगर हो जाए, सो ट्रस्ट मी, जब वो व्हेन दोस थिंग्स विल ग्रो, यू विल बी लाइक हैप्पी बियॉन्ड एनीथिंग. तो वो जो खुशी होती है ना, जो फर्स्ट सेपलिंग आप लगाते हो, वो छोटे छोटे वो अंकुरित होते हैं, वो प्लांट निकलता है एंड लेटर ऑन दोस फ्रूट्स, सो यू रियली बी हैप्पी इफ यू एवर डू दैट. I occasionally do that, and before this, like I've recently come to Delhi, and before this we were in Rajasthan. So there I had a huge backyard and kitchen garden. So वहाँ पे again I was inspired from my dad. So मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीजें उगाई and I was really proud of myself that okay, a girl like me, who was like जिसको नहीं कुछ भी ये सारी चीजें समझ आती थी, I could do so much. And it's all about your intentions कि यार हमने ये करना है, and then trust me, you would be like happy beyond anything. So this is the thing. And like you mentioned about my father, he's an amazing cook, and so is my mom. I mean, like my mom is an all-rounder and dad specializes in certain things, and so are my brothers, my younger brothers, my siblings. They are like master chefs if you ask me. So nobody taught us cooking. किसी ने हमें सिखाया नहीं कि इसको ऐसे बनाओ या अभी ये step है या ये करना है. It just got ingrained into us over the period of time. And क्योंकि वो घर का माहौल ऐसा था कि अच्छा अभी हम ये खाएंगे, ये बनाएंगे, अच्छा अभी संडे आ रहा है, संडे को क्या स्पेशल बनेगा.
सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ मॉम कुक करती थी, हम सारी फैमिली मिलके कुछ ना कुछ करते थे और सबकी स्पेशलिटी होती थी कि आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे. So both my brothers, my younger brothers, now they have moved abroad and settled in Canada. But वहाँ भी यही चलता रहता है. They are like, again with their recipes, and I think that's what gives happiness. ये जो खाना है and खाना बनाना, इसके पीछे का जो भी है, the way you procure food, the way you get it from the market, even when you're not growing it. So little things, little joys, but again, if you see, yahi happiness. And this is what life is all about. True. Food is happiness. Food celebration. Exactly. It's a universal language. Yeah, it binds everyone. It connects everybody together. But next time I'm coming to Jammu, I'm going to do a food tour with you, and then I'm going to meet your father. और Oh, जो yes, dishes बताई yes. हैं, Exactly, he would love it. In fact, I was telling him about this show, and he was so excited. थैंक यू नवनीत, आपने बहुत अच्छे से हमें अपने जर्नी के बारे में बताया, लाइक हाउ योर ब्लॉग स्टार्टेड एंड द रीजन बिहाइंड दैट नेम ग्लैम एडवेंचर्स. तो मैं जानना चाहता था कि क्यों ऐसा नाम है दोनों. सो इट्स अ मिक्स ऑफ यूथ एंड पैशन बोथ, एंड देन योर ट्रैवल Right. एक्सपीरियंसेस. Then we got to know about your interest in food, your food stories, your favorite food and travel destinations, and what you love cooking. और बहुत अच्छा मतलब एक सेशन रहा उस टाइम, एक इंटरेक्शन रहा. एंड वेरी सून पोस्ट पैंडेमिक जब दोबारा से ट्रैवल शुरू होगा और हम लोग दोबारा से बाहर जाना शुरू करेंगे, so I'll surely plan to visit Jammu and explore the local street food, explore all the places which you just mentioned कि जम्मू में कहाँ कहाँ ट्राई करनी चाहिए. और साथ साथ आप जो डिशेस बनाते हैं उसके बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, we'll add the link of your YouTube and your Insta handle. People can visit that. We'll add it in the show notes. और उसके बाद लोग जाके आपसे कुछ रेसिपीज जानना चाहते हैं वो भी जान सकते हैं, वो देखना चाहते हैं वो देख से समझ भी सकते हैं. तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thanks for having me. Yeah, it was a pleasure, and if possible, अगर हो सका post lockdown, then I would love to join you and show my city and its food culture. थैंक यू. एंड बिफोर वी एंड जस्ट वन लास्ट थिंग. ये कोविड का समय चल रहा है, सब लोग घरों पे हैं. वन मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव टू ऑल आवर व्यूअर्स कि इस टफ टाइम्स में हम लोग अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं. जैसे आपने बताया कि आप एक बहुत ही अच्छा आपने टर्म यूज किया था, मूड बोर्ड्स. Yeah, mood boards. वो So क्या mood होता है, वो boards जानना are चाहता हूँ मैं. okay. So mood boards are basically the way you plan things. All right. So maybe in the month of, these are like short-term planning, short-term goals, long-term goals. So often we people, what we tend to do कि हम एक long-term अपना goal रखते हैं कि मुझे ये करना है. But if we ask ourselves, we don't actually work towards it. हम बस ये करते हैं कि मुझे ये करना है, but वो कैसे करना है? See, there is no magical wand. वो अपने आप नहीं हो जाएगा. We have to, like really work towards it to achieve it. तो उसके लिए what I personally do is like I create short-term goals. All right. And like on daily basis, like today, this is my goal. I have to finish it. I have to do this. I have to probably read this book or write this article, shoot this video, do this campaign, whatever, your work, your personal stuff. So then I know कि मेरा वो weekly goal क्या है. Then what is my monthly goal? Then what is my yearly goal? So then you don't feel disgusted. Then you don't feel, pessimistic about it. Then you're always charged, always high on this, that yes, you look forward to the next day. Yeah, you spring out of your bed कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये finish करना है. But at the same time, having said that, don't set unrealistic goals. Don't set goals जो आप पूरे ना कर पाए. And then later on, you are like कि नहीं हो रहा. This is like it's not, I'm not being productive. Because अगर आप unrealistic goal set करते हो तो वो आप खुद को ही अपना ही that mental health, you are hampering that. And especially in times like COVID, like what I did, I don't know if you have seen. So the previous lockdown, I started with this challenge of 20,000 steps a day.
So I started this with my Instagram followers. I shared my journey with them, and I'm so glad I could inspire so many people. And again, it's for the greater good. Like, people are working out, they are like, focusing towards their health. So I did it like religiously for about a month, and slowly and steadily, Anubhav, I realized that I had ingrained that. एक challenge तो start कर दिया था, but it was not just a challenge. So now it's been a year, and off and on, like I am, like doing my 20,000 steps a day. So अभी lockdown हो गया है, but still, whenever I get a chance, मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ. You would say that घर में how do you do it? But it's again like either you wear your watch, or like if you have your phone with the pedometer thing with that app. So keep walking, keep listening to any podcast or music or whatever you want to, and just keep walking and move that body, stay healthy. And these times are really crazy, but see, you don't have to go crazy. Find something which you are really passionate about, be it cooking, be it reading, be it anything, and enjoy it, and just take care of yourself and take it easy. The times are tough, but they will pass for sure. थैंक यू नवनीत, थैंक यू फॉर शेयरिंग द पॉजिटिव थॉट्स. और इसी के साथ हम आज का एपिसोड, जो फर्स्ट एपिसोड था, आपके साथ हम एंड करते हैं.